A pleasure to have this opportunity to share. So about myself, around 28 years of experience after graduation, and earlier a few years out of 28 years working as a project manager in the companies. But in the last 15 years, a kind of a change in career and started training as a freelancer. So at present, give trainings into project management, certifications, and soft skills, and have the interest in learning how the mind actually responds to various things. So that's a brief sharing. So can we start, Sakshama? Yes, Pritesh. Thank you so much. Okay. So let me just share the slide for the reference. We can see that. Yeah. Yes. Okay. So we'll try to see in today's session about some learnings about mind, like what exactly the mind is. Because if you want to control something, then we need to also learn what that thing is. For example, we all have the various body organs, and suppose I say that raise your right hand, then you will raise the right hand. So you are controlling your hand by giving the command, right? Because it is your hand, you can control. Similarly, if I ask question, whose mind it is, you can type in the chat, and I'm not sure whether you can unmute. They can unmute and say answer. Yes. All Okay. I think everybody So has that access, so right? like you have your hand, so you say it's my hand. So the mind also is yours, right? Uh, Anyone want to answer? Okay, fine. So anyway, in short, we unless we know what the mind is, it's difficult to work with it. So today we'll try to understand the mechanism of mind, how the mind works, what exactly the mind is. That's the first question. So first question comes like, what is mind? What it does? That means what is the role of mind, and how does it look like? Is it visible? So if I ask question, you can show the hand, but can you show your mind? Let us have a session interactions, No. which makes the session live, Yeah. and yeah, and those who can come in camera also should be good. No, right? It's not physical. Uh, so it's not physical, but still it is there, right? It exists. Everyone says, even the children, grown-up children will say, "My mind." Everybody is using this terminology, right? My mind. So if something is yours, you should be able to control, right? If the hand is yours, you can decide whether to move the hand right or left. Then why we are facing the situation of thoughts coming in the mind, but we feel many a times that uh, they are not the one which we want. मतलब हम ऐसे thoughts, ऐसे विचार नहीं चाहते हैं, फिर भी आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कंट्रोल में नहीं है. तो ऐसी सारी चीजें, और खास करके आजकल हम देखते हैं कि वेस्ट थॉट्स, वी गेट लॉट ऑफ वेस्ट थॉट्स. So within today's available time, we will try to address the issue and see if we can start getting the benefit right from the today, right from the time when we learn. So first question, what is mind? Anyone want to answer? आपके हिसाब से mind क्या है? Anyone want to answer? Mind है क्या? कोई आपको बोले कि show the mind. Can you show that? You can't show it, but Okay. it's a mechanism which helps you to keep all your parts active. Actually, it's connected to all your parts Mm-hmm. of the body. तो आप दिखा सकते हो, बट विथ योर माइंड में जो चल रहा है उसको आप हाथ से या कोई और एक्शन से दिखा सकते हो. Right. So in other words, बट या we can say that we
feel, we all feel that, yeah, something is going on, but we cannot show it Right. outside. We can write Right. it down. This is what is going on, right? Mm. Okay, so first question comes just to understand what's happening. Let's say we have gone somewhere by our vehicle, let's say car or something. Particularly, I would like to take example of the two-wheeler. It is a place little away from the city, and the two-wheeler is not working. Mhm. Now, it is a very remote area, and we don't find the mechanic. So that time we will think that it's good. I would have learned some basic things like how to check the Mm. spark plug and other things, right? That time we get a thought that it's better to have some basic knowledge, not the detailed knowledge like the mechanic. So Mhm. similar to that, mind is like that. Mind is something we have with us. So we don't want to go into that detail like the technician or the person who is repairing the vehicle, but at least we want to go to the level where we can manage the basics at least to start with, and then we can go for the detail if we are interested. So generally, why nowadays, if you feel, no, we are seeing that there was one answer, just would like to read. The mind is the set of cognitive and emotional process that allow us to think, feel, perceive, and make decisions. Wonderful, thank you. Okay, so in short, uh, we want to first understand what the mind is. So we will just take a reference of some current situation. So current situation is why a majority of the people want to learn about meditation or about mind, because uh, we tried many things to work on the mind, but somehow we are not getting that clear results. uh, for example, sometimes we do prayer, go to temple, sit in silence for some time, it helps, but moment we come out of that place, we again feel the way starting. So in order to the reason is in our society or the education culture, the topic of mind subject is probably not taken that seriously in the syllabus. In all the graduation program or all the school, we are being taught everything except about the mind, through which we do many things. Okay, so today our focus is that. So in the diagram, if you see, so who creates the thought? If I ask the question, who creates the thoughts? Answer will be I create the thought, right? Uh, I create the thought. So we will try to understand various angles, how the our intention is first understand what are the possible ways thoughts are created. So here in the diagram, you can see you are the creator of the thoughts. Many times people say you are the creator of your destiny. So change the thoughts to change the destiny. But the problem that people say is I'm not able to do that. So what is that problem? So फर्स्ट ऑप्शन इज, जैसे हम देख सकते हैं कि हम रचयिता है। जैसे हाथ है, हाथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे आप जैसा विचार चाहो वैसा कर सकते हैं। दैट इज द आइडियल पोजीशन। हम क्रिएटर है। तो हम अभी समझ रहे हैं कि हम जब विचार क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, और थोड़े 10-15 मिनट के बाद हम ये भी समझेंगे कि अगर हम क्रिएटर है तो दूसरे विचार आते कहाँ से है, हम नहीं चाहते हैं वो कैसे कहाँ से आते हैं, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। सो हम बहुत बेसिक, मतलब शुरू से पहली बार अगर हमने विचार क्रिएट किया तो क्या होता है, तो इट गोज इनटू माइंड। माना आपने कोई विचार क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल आपने ये आज का क्लास था तो मैसेज आया तो आपने थॉट क्रिएट किया कि क्लास है आज तो मुझे सुनना है। तो वो आपने एज ए क्रिएटर थॉट क्रिएट किया कॉन्शियसली, तो वो गया कॉन्शियस माइंड में। इसको हम जागृत मन भी कह सकते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट क्या है, आप क्रिएटर है, आप थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो वो जाता है माइंड में। अभी हमारा टॉपिक है माइंड के बारे में। तो माइंड है क्या एक्चुअली? तो माइंड जो है, माइंड इज लाइक अ कंटेनर। मैंने पूछा ना, आई आज द क्वेश्चन कि माइंड है क्या, दिखता तो नहीं है लेकिन किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे। तो माइंड जो है वो एक कंटेनर है, बॉक्स है, स्टोरेज कंटेनर। जैसे अ, जैसे आप अ, घर में किचन में कुछ नाश्ता होता है, बिस्किट्स फॉर एग्जांपल है, तो आपने उसको कंटेनर में स्टोर किया है, राइट? तो वो जो स्टोर किया है ना, स्टोरेज कंटेनर, इस लाइक माइंड इज लाइक दैट। दैट मीन्स वट एवर थॉट्स यू कीप क्रिएटिंग, इट गोज इन टू द कंटेनर कॉल्ड माइंड। तो माइंड का काम क्या हुआ? क्विकली, क्विक इंटरेक्शंस। माइंड का काम क्या हुआ? अगर विचार, हर विचार जो करते हैं वो वहां जाता है तो
उसको क्या कहेंगे? स्टोरेज। like a storage. एग्जैक्टली, तो माइंड का पहला काम है स्टोर करना, विचार को स्टोर करना। अच्छा, वही एग्जांपल जो किचन का लिया, किचन में एक डब्बा है जिसमें आपने बिस्किट्स भरे हैं। अच्छा, तो डब्बे को मालूम होता है कि क्या भरा है? डू द कंटेनर नो व्हाट इज बीइंग एडेड? No, not at all. नो। No, तो दैट इज because व्हाई it's like whatever you fill the आप जो भी चाहेंगे, whatever you add in the container, बिस्किट ऐड करो, स्टोन पत्थरे डालो, उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह माइंड में हर करने वाले जो है ना वो आप है। हाँ? आप विचार कर रहे हैं, तो माइंड के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है आपको बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने T1 एक विचार क्रिएट किया, जो मान लो कि नेगेटिव थॉट है, तो माइंड को वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर उसके पास वो कैपेबिलिटी होती तो कंटेनर में वो एंटर ही होने नहीं देता। समझे ना? mm, तो जो भी हम विचार करते हैं ना, फर्स्ट स्टेप, वो सारे विचार माइंड स्टोर करता है। तो ये एक काम हुआ। अच्छा, अभी स्टोर तो किया, तो जो क्रिएटर है ना वो कितने भी विचार कर सकता है, वो पॉसिबल है। मतलब आप बैठे हैं, 10-15 विचार एक साथ कर सकते हैं, और माइंड की भी कैपेसिटी है, वो विचार को स्टोर कर सकता है। उसमें वो कंप्लेन नहीं करेगा, उसकी लिमिट वो है, वो कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। अच्छा, अभी स्टोर किया, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, जैसे अभी कंटेनर में बिस्किट्स है, उसके पास, उसके बाद बिस्किट्स है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? टू ईट फॉर एग्जाम्पल। अभी आप बताइए, कंटेनर में पूरा भरा हुआ है, पूरा लेट्स से 30 बिस्किट्स आर देयर। तो जब हम खाएंगे तो क्या एक साथ 30 बिस्किट्स खा पाएंगे? कैसे खाना पड़ेगा? माउथ कैसे वर्क करेगा? One by one. वन बाय वन, राइट? वन बाय वन। तो ठीक उसी तरह जो इंटेलेक्ट है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, तो हम ये पूरा मैकेनिज्म समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना है ना, तो लेकिन समझना तो पड़ेगा ना माइंड है क्या, और उसका कंट्रोल किसके पास है। तो माइंड में 10 विचार है, जैसे कंटेनर में 10 बिस्किट्स है, तो आप एक साथ नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह माइंड में जो विचार है, माइंड में जो विचार है, वट एवर थॉट्स आर देयर, वन बाय वन, हाँ, वन बाय वन, दैट मीन्स सपोज यू हैव क्रिएटेड 10 थॉट्स। 11 o'clock क्लास है, 12 o'clock फूड लेना है, 1 o'clock बाहर जाना है। सो ऑल दैट थॉट्स आर देयर, बट वन बाय वन इट विल बी प्रोसेस्ड। ठीक है, तो इंटेलेक्ट जो है ना, सो अभी नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट रोल ऑफ द माइंड? एक तो स्टोरेज करना, और स्टोरेज करने के बाद जो भी थॉट्स किया ना, पोस्ट टू इंटेलेक्ट, बुद्धि को पोस्ट करना डिसीजन के लिए। क्या करना है अभी? आज क्लास है, क्या करें? क्लास भी है लेकिन वहां भी जाना है, प्रायोरिटी, डिसीजन। तो ये 10 विचार जो आपने कंटेनर में रखे ना, वो वन बाय वन ही बुद्धि को देने चाहिए। मैकेनिज्म ऐसा है, जैसे माउथ है, मैकेनिज्म ऐसा है कि एक के बाद एक ही बिस्किट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने एक साथ 5 बिस्किट डाल दिए तो कंफ्यूजन होगा, वो प्रॉपर होगा नहीं, च्यूइंग पार्ट। ठीक उसी तरह बुद्धि को अगर हम एक साथ बहुत सारी चीजें दे देंगे, इसका क्या उसका क्या, बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स, तो बुद्धि कंफ्यूज हो जाएगी। अच्छा, तो अभी बुद्धि के पास जैसे ही विचार आपने भेजा, आप क्रिएटर है ना, तो आपने सोचा कि अभी करे क्या, तो ये जो डिसीजन वाली बात आती है ना, वो बुद्धि के पास जाती है। ठीक है, बुद्धि अभी क्या करेगी? बुद्धि 4 चीजें करेगी। बुद्धि 4 चीजें करेगी। पहले आपने जो विचार दिया वो समझेगी कि ये क्या कह रहे हैं। फिर समझने के बाद बुद्धि एनालिसिस करेगी उस विचार का, और एनालिसिस करने के बाद वो निर्णय करेगी क्या करना है। और निर्णय करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन बुद्धि का, विजन। विजन करना, विजुअलाइजेशन शब्द यूज करते हैं ना, लेकिन विजन, विजन माना जो विचार दिया वो कैसा दिखता है, उसका चित्र बनाना, उसका चित्र बनाना। हाँ, फिर से 4 स्टेप्स: अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, एनालाइज द थॉट, डिसाइड एंड एक्ट, दैट मीन्स विजन। तो जब बुद्धि एक्ट में लाती है, तो वो जो भी आपने एक्शन लिया वो स्टोर हो जाता है आपकी मेमोरी में। इसलिए यहाँ पर दिखाया है मेमोरी। हम समझेंगे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या है, क्योंकि माइंड के बारे में समझते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 टाइप्स ऑफ माइंड्स आर देयर: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। So if you want to control the mind, you also have to understand what is subconscious mind. Ultimately, it is a mind, right? So now, ये जो बुद्धि का फंक्शन समझा है ना, उसको एक्सपीरियंस करेंगे हम कि कैसे प्रैक्टिकल में समझे इसको। तो
we will do one exercise, mental exercise. So just sit comfortably. I will give you some thoughts. और हम ये ट्रायंगल है ना जिसमें हमने कहा कि हम क्रिएटर है, माइंड में थॉट्स जाता है, फिर बुद्धि के पास जाता है, बुद्धि ये काम करती है, तो उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ इसी तरह से काम करती है. ठीक है, रेडी? सो अभी सिट कंफर्टेबली just for 1 or 2 minutes. So first situation or scenario, I'm telling you, आप अपने कोई फ्रेंड का घर है या तो कोई रिलेटिव का घर है, उसको याद कीजिए, या तो अपने ही घर में या तो रिलेटिव्स के घर में आपको अभी प्यास लगी है, तो आप संकल्प कर रहे हैं कि मुझे पानी पीना है. तो मैंने आपको कहा कि आपका किचन कहाँ है उसको देखो, तो आप बुद्धि से उसको देखते हैं, वहां जाते हैं और मटके से या फ्रिज से पानी लेते हैं. यू टेक द वाटर फ्रॉम दैट एंड ड्रिंक एंड देन यू कम बैक. अच्छा, ये सिर्फ एक एग्जांपल लिया. अभी एक और एग्जांपल. सिर्फ आपको इतना ही करना है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसके घर जाना है बुद्धि से. जैसे आपको एक विजुलाइज करना है कि हाँ वहां हम गए. ठीक है, अभी आप बताइए आप कर पाए? हेलो, आप कर पाए? Yes. राइट, Yes. ओके. अभी दूसरा सिचुएशन. दूसरा सिचुएशन दूसरा सिचुएशन ये है कि आप, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके घर जाओ. अभी क्या हो रहा है? अभी आप कर पाए? कैन यू डू इट? Mhm. नहीं है ना? ओके, सो अभी दिस टू सिचुएशंस वी आर लर्निंग व्हाट हैपन. तो फर्स्ट आई गेव द थॉट. तो डायग्राम में आप देखिए, आपने सुना कान से, लेकिन आपने एज ए क्रिएटर जो सुना उसके आधार पर थॉट क्रिएट भी किया, लेकिन वो बहुत फास्ट हो रहा है, तो आपको वो सेंस नहीं होता है कि मैंने क्रिएट किया. सुना और एक्चुअली आपने क्रिएट किया. हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा डिसाइड किया होगा कि भले ने वो बताया, हम नहीं करेंगे. तो सुना, लेकिन थॉट क्रिएट करना है कि नहीं करना है, इट इज इन योर हैंड एक्चुअली, आइडियली. सो हियर इन फर्स्ट केस I said go to your friend's house, so you're able to go or see that. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ? थॉट क्रिएटर ने क्रिएट किया, माइंड में गया, माइंड ने उसको बुद्धि को दिया. सो व्हाट इंटेलेक्ट डिड? इंटेलेक्ट सबसे ये बहुत फास्ट होता है मैकेनिज्म. तो फर्स्ट इंटेलेक्ट ट्राइड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स होम. विच फ्रेंड? ओके, दैट फ्रेंड. यू डिसाइडेड सम नेम. फिर अंडरस्टैंड किया, अच्छा उसका घर वहां है. फिर एनालाइज किया, ये घर है कि वो घर है? नहीं, यही घर है. निर्णय किया, हाँ वही घर है. तब आपको विजन हुआ उस घर का. तो वो जो आपको दिखता है ना, यू आर एबल टू सी दैट थॉट इन एक्शन. वो दिखाने का काम बुद्धि का है, इंटेलेक्ट का रोल है. ठीक है, तो ये ऐसे होता है जब जब हम सोचते हैं ना, ये सारी प्रक्रिया होती है. इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे, इफ यू ऑब्जर्व, माइंड को अगर कंट्रोल करना है ना, तो इंटेलेक्ट शुड बी पावरफुल. ये इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इंटेलेक्ट वीक होगा तो डिसीजन वीक होगा. ओके, अभी सेकंड एग्जांपल. आई सेड गो टू माय फ्रेंड्स हाउस, यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. सो व्हाट हैपेंड हियर? यू ट्राइड टू क्रिएट अ थॉट एज ए क्रिएटर, फिर इट वेंट टू माइंड, देन फ्रॉम माइंड इट वेंट टू इंटेलेक्ट. सो फर्स्ट व्हाट इज, अभी आप सब बताइए, फर्स्ट इंटेलेक्ट क्या करेगी? अंडरस्टैंड करेगी ना, उनके बेस्ट फ्रेंड का घर अर्थात क्या, राइट? तो अभी क्या होगा? इंटेलेक्ट अंडरस्टैंड कर Question पाएगी create कि नहीं कर पाएगी? नहीं. क्वेश्चन क्रिएट होगा कि कहाँ है. हाँ, तो अभी इंटेलेक्ट has got 4 function: understand, analyze. So out of 4 function, where the intellect is stuck, माना कहाँ वो अटकी है जब थॉट दिया? Analyze. हाँ, Analyze. नहीं है. अंडरस्टैंडिंग में ही ओ फंसी हुई. अंडरस्टैंडिंग में फंसा है, राइट. एनालिसिस तो तब करेंगे ना जब क्लियर है. तो
इंटेलेक्ट जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग में फंसी हुई है कि ये उनके बेस्ट फ्रेंड का तो पता ही नहीं है तो कैसे आगे, है ना। सो नाउ नाउ द वे मैकेनिज्म वर्क्स, माइंड को कंट्रोल करना है ना, माइंड अभी कंफ्यूज हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूज है कि उनके फ्रेंड मतलब क्या। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में है, राइट। तो उसको नॉलेज देना पड़ेगा इसके बारे में, अच्छा कहाँ है, एड्रेस बताओ। फिर आपने अगर एड्रेस लिया, आप एक बार जाएंगे, बुद्धि समझेगी तो मेमोरी में स्टोर होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेमोरी है। अगर एक बार आप वहाँ गए हैं मेरे फ्रेंड के वहाँ, फिर अगर आपको पूछा तो अभी बुद्धि समझ पाएगी, एनालिसिस कर पाएगी, डिसाइड कर पाएगी एंड एक्ट कर पाएगी, माना विजन क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट समझ रहे हैं। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, एक क्वेश्चन है, दुनिया में जो भी कोई चीज है फिजिकल वर्ल्ड में, वो कितनी बार क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चेयर है, हाउ मेनी टाइम्स एनीथिंग इज गेटिंग क्रिएटेड। एनीवन, आप बताइए, सही गलत क्वेश्चन ऐसे मत समझ में नहीं सोचिए। आया। क्वेश्चन ये है कि कोई भी चीज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल है, चेयर है, तो वो हम्म कितनी बार क्रिएट होता है, हाउ मेनी टाइम्स इट गेट्स क्रिएटेड, 1 2 3, जब एज तक मेनी टाइम्स उसको वी लोग सी। मैनी नहीं टाइम्स जितना परफेक्शन करना है उसके हिसाब से। नहीं, एक सिंपल एग्जांपल, मोबाइल है, मोबाइल को बनाना है तो वो कितनी बार क्रिएट होता है, एक ही बार। जब हाथ में मोबाइल आता है तो एक मोबाइल है, एक बार क्रिएट हुआ। तो हम्म आंसर क्या है, कितनी बार क्रिएट होता है। तो एनीवे आंसर ही बताता हूँ। एक्चुअली एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज गेट क्रिएटेड बाय टू टू टाइम्स, 2 टाइम्स। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर है, सपोज कारपेंटर घर पे आता है, आपको एक टेबल बनवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे ऐसा चाहिए, इतना लंबा इतना चौड़ा, है ना। अभी इस डायग्राम के हिसाब से कारपेंटर क्या करेगा, हाँ, उसकी बुद्धि से वो एनालिसिस करेगा, विजन करेगा, अच्छा उनको ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। फिर एक बार आपका सब क्लियर हो जाएगा तो कारपेंटर क्या करेगा, बुद्धि में उसको जो विजन है आपको कैसा टेबल चाहिए वो पेपर में ड्रॉ करके देगा, और एक बार कंफर्म हो जाएगा उसके बाद वो प्रैक्टिकल में बना देगा। समझ right, में आया। हम्म, सो एक्चुअली कितनी बार कारपेंटर ने क्रिएट किया टेबल को, और कहाँ क्रिएट किया। वैसे तो 3 बार, एक बार माइंड में, एक बार पेपर पे, एक बार हाँ रियल तो लाइफ पेपर में बताते है हैं वो, नहीं पेपर में तो एक प्रिंट आउट जैसा है, लेकिन क्रिएट कहाँ हुआ, माइंड में, माइंड में। बुद्धि के द्वारा। हाँ, बुद्धि बुद्धि ने देखा। तो एक्चुअली कोई भी चीज की रचना 2 बार होती है, पहले कहाँ होती है, माइंड पहले तो माइंड में। माइंड में, राइट। तो वहां पर अगर हमने रचना सही की, हाँ, बुद्धि का उपयोग करके सही विजन क्रिएट किया, जिसको कहते हैं ना विजन, लाइफ में क्रिएट करो विजन। तो अगर बुद्धि ही कंफ्यूज है तो विजन क्रिएट नहीं होगा। तो अगर हम्म हमारी पहली रचना, फर्स्ट क्रिएशन इन द माइंड, मेंटल लेवल, उसमें गड़बड़ है, तो सेकंड क्रिएशन मतलब फिजिकल लेवल पे जो क्रिएट होगा उसमें गड़बड़ ही होगी। ठीक है, ये थोड़ा आपको क्लियर करने के राइट। लिए कि हम्म कोई भी प्रॉब्लम एक्चुअली, क्योंकि अल्टीमेटली माइंड कंट्रोल करना माना बहुत सारी चीजें लाइफ में है उसको कंट्रोल करना, कैसे अच्छी तरह से एफिशिएंट बनाना। तो एक चीज व्हाट वी लर्न राइट नाउ इज दैट mind is actually controlled by the intellect. So if first level creation of anything, it could be meditation also, if the intellect is not understanding properly meditation क्या है, कैसे करना है, रियली वो करना क्या है, अगर इंटेलेक्ट को वो अंडरस्टैंडिंग का स्टेप प्रॉपर नहीं किया है और ऐसे ही कर रहे हैं तो कंफ्यूजन में रहेगा, तो विजन क्रिएट नहीं होगा, हमको रिजल्ट फील नहीं होगा, है ना। तो जो थॉट्स राइट, माइंड में है वो अच्छी तरह से, हाँ जी, नहीं सही है। राइट, ओके। तो ये हुआ इंटेलेक्ट का, ठीक है। अभी कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, स्लोली आपको पता चलेगा इन द नेक्स्ट 5 10 मिनट्स व्हाई वी डिस्कस्ड ऑल दिस, बिकॉज फाइनली हमें ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड, उसमें जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, क्रिएटर को करना है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कर नहीं पाते हैं, हम जैसा चाहे वैसा थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि और थॉट्स आ जाते हैं, वेस्ट थॉट्स पास्ट के आधार पर। तो यहाँ पर आप देखिए, देयर इज अ मेमोरी ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन, इंटेलेक्ट के बाद। तो जो भी कुछ हम सोचते हैं, एक्शन में लाते हैं, वो इमीडिएटली मेमोरी में स्नैपशॉट हो जाता है। जैसे वो सीसीटीवी, आप चाहो ना चाहो वो उसका स्नैपशॉट मेमोरी स्टोर होता ही जाएगा। जैसे आपने आधे घंटे से सुना, जो सुना ना वो मेमोरी में फिट हो गया, वो जाएगा ही जाएगा। तो ये जो मेमोरी है ना वो पास्ट रिप्रेजेंट करती है, जो भी आपने किया आधे घंटे पहले।
अभी मेन पॉइंट जो है ना, मेमोरी से एरो जाता है माइंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। और उससे पहले वी विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। हम सबने सुने हैं शब्द, सब लोग आजकल कहते हैं सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करो फॉर जो भी आपको सक्सेस चाहिए ऐसे। लेकिन अल्टीमेटली वो है क्या? माइंड तो एक ही है, फिर ये तीन चीजें क्यों बताई है? माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सो let's understand. Conscious mind means what? Right now, right now, you are listening, right? So whatever you are listening, that is happening through conscious mind. But all all participants सुन तो सेम रहे हैं, माना कॉन्शियस माइंड उनका एक्टिव है, लेकिन वो कैसे समझ रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, वो हर एक का अलग होगा। क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तो मेमोरी में से भी फीडबैक आता रहता है। ऐसा कैसे है? वो तो बता रहे हैं कि माइंड कंटेनर है, लेकिन मैंने तो सुना था माइंड तो ऐसे ही है, कोई कंटेनर नहीं है। तो वो जवाब आएगा 3 नंबर से। ओके, तो अभी हम क्या समझ रहे हैं? कॉन्शियस माइंड इज लाइक, जब भी आप कुछ प्रेजेंट में कुछ कार्य करते हैं ना, अटेंशन देके, जैसे खाना बना रहे हैं तो कॉन्शियस है, लेकिन खाना कैसे बना रहे हैं, कौन सी रेसिपी यूज करना है, वो आता है मेमोरी में से। तो नाउ डिफरेंस बिटवीन सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड और मेमोरी। ठीक है, तो जैसे 3 लेयर है माइंड में, ऐसे समझो कि 3 लेयर है। आई एम नॉट श्योर आप ये देख पा रहे हैं कि नहीं, मुझे बताना। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, आप देख पा रहे? नहीं प्रीतिश भाई, नहीं ना, वो नहीं। हाँ, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, मे इट्स बी फाइन। कलर आपने ये डार्क बैकग्राउंड है तो कलर की वजह से नहीं नहीं, कलर ठीक है, एक्चुअली कुछ इश्यू यहाँ है इस सिस्टम में। तो फाइन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो जनरली वर्क नहीं करता है, थोड़ा चेक किया आपके साथ। एनीवे तो फाइन, जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट अंडरस्टैंड। तो हाँ, अभी बात ये है कि सबकॉन्शियस मेमोरी और सबकॉन्शियस माइंड अर्थात क्या। वैसे तो माइंड एक है, लेकिन इसको समझना है कि वो कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग ऐसे है। तो जैसे हम रेलवे में जर्नी करते हैं ना, तो कितने बर्थ होते हैं? हाउ मेनी बर्थ रेलवे में? मतलब ट्रेन में आपने सफर किया होगा, Three. 3 होते हैं ना। किस इसको क्या कहते हैं? अपर, Lower. मिडल, मिडल, Middle and मिडल lower. एंड देन लोअर, राइट? तो कॉन्शियस माइंड है ना, वो अपर बर्थ जैसा है, अपर बर्थ जैसा है। सबकॉन्शियस माइंड है मिडल लेयर जैसा, और अनकॉन्शियस है ना वो लोअर लेयर। तो माइंड आपका एक ही है ना, ट्रेन का कंपार्टमेंट एक ही है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है? तो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका वो, इसका मतलब क्या? इन दिस बर्थ, सपोज आई आस्क कि आप कौन सी स्कूल में थे, तो हो सकता है आपको इमीडिएटली याद न भी आए। लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपके साथ बैठा है, बोलेगा याद है वो वहां पर हमारी स्कूल थी उस एरिया में, तो हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन करने के बाद याद आ जाएगा। तो सबकॉन्शियस लेयर जो है ना माइंड का, वो इस जन्म का डेटा स्टोर करता है, इस जन्म का, प्रेजेंट बर्थ का। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है ना, वो हम चाहे तो एफर्ट देकर रिकॉल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड माना, Okay. हम चाहे तो That's like एफर्ट a दे, blueprint. हाँ ब्लूप्रिंट ही है, लेकिन एफर्ट देकर रिकॉल कर सकते हैं, मेहनत करके, उसको प्रश्न पूछ पूछ करके। भूल सकते हैं लेकिन याद कर सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस जो है ना, अनकॉन्शियस, वो इससे पहले बर्थ का है। माना इस बर्थ के पहले पास्ट बर्थ जो थे हमारे, वो डेटा है। इसलिए कभी कभी अभी आप देखिए, 3 नंबर से एरो जा रहा है 1 नंबर में। तो अभी माइंड में कभी कभी क्या होता है, वी गेट द थॉट्स, समटाइम्स वी फील मुझे ये पहले विचार आते ही नहीं थे, अभी क्यों आ रहे हैं? तो क्या होता है, कुछ एक चीजें अनकॉन्शियस मेमोरी में होती है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो पास्ट बर्थ में उसके साथ आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है वो सामने आता है, तो वो ट्रिगर होके 1 नंबर में मिक्स हो जाता है, इसलिए आपका बिहेवियर उस समय डिफरेंट हो जाता है। अनकॉन्शियस जो है ना, वो अनकॉन्शियस माना कॉन्शियस नहीं है वो डेटा, लेकिन उसको अगर कोई ट्रिगर मिलता है तो वो कॉन्शियस में आ जाता है, ऊपर आ जाता है डेटा। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माना इस जन्म का डेटा अगर रिकॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। अनकॉन्शियस माना रिकॉल करना चाहे तो रिकॉल नहीं कर सकते, लेकिन उसे ट्रिगर मिलेगा उस बात से। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, फ्लाइट में बैठने का डर लगता है, ऐसा होता है ना। तो वो क्यों होता है? अनकॉन्शियस माइंड में उनके पास्ट बर्थ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है पानी के साथ, कुछ हुआ होगा उनके साथ। तो जब भी वो कॉन्शियस माइंड से पानी को देखते हैं, तो 3 नंबर से मैसेज आता है, नहीं भाई पानी में नहीं जाना है। अंडरस्टैंड? तो वास्तव में देखा जाए तो माइंड
एक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर देखे तो माइंड है ना वो कंट्रोल होता है आपका पास्ट एटीट्यूड, पास्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसा रिसर्च हुआ है कि 90% ऑफ जो थॉट्स आते हैं ना कॉन्शियस माइंड में, जो हम नहीं चाहते वो आते हैं, वो एक्चुअली यहाँ से आते हैं। तो ये आंसर है क्यों हमें वेस्ट थॉट्स आते हैं, मैं तो उस व्यक्ति के बारे में भूल गया था फिर भी वो क्यों याद आता रहता है। तो जिस प्रकार की छाप आपने भूतकाल में क्रिएट की है, उस छाप के आधार पर कॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं कैसे ये छाप बनती है। ज्यादातर देखा होगा हमको एक दो व्यक्ति के साथ ज्यादा परेशानी होती है, घर में या कहीं पर फैमिली में एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो क्या होता है, ये जो क्रिएटर है ना वो थॉट क्रिएट करता है, वो आंखों से देखता है कि ये कैसा है, अच्छा है बुरा है। अगर हम साइंटिफिकली कोई भी थॉट मोर देन 21 टाइम्स करते हैं, मोर देन 21 टाइम्स, तो उसकी एक इंप्रेशन बन जाती है। एक दो बार किया तो पक्की इंप्रेशन नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही वो इंप्रेशन बनने के बाद जब भी माइंड फ्री होता है, जब भी उसका क्रिएटर उसके माइंड को उपयोग नहीं करता है, तब ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। आपने देखा होगा संडे को ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। जब आप ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, उस समय आपको पूरा 8 घंटा ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस समय क्रिएटर जो है ना अपना माइंड कंट्रोल कर रहा है डायरेक्ट 1 नंबर से, बिजी है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि बिजी रहो तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन because mind is occupied. या तो जैसे ही माइंड फ्री होता है ना, तुरंत ही ये इंप्रेशंस जो है ना, जो भी पावरफुल इंप्रेशन है वो पहले ऊपर आती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति के साथ अनबन है, अगर वो पावरफुल इंप्रेशन है, तो जैसे ही आप फ्री होंगे ना, आपका माइंड उसमें वही विचार आएंगे। तो आपको लगेगा ऐसा मुझे विचार क्यों आ रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अनजाने में उस व्यक्ति के बारे में बहुत बुरा है, बहुत बुरा है ऐसे करके 21 बार और ज्यादा, ये तो बहुत एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन वी क्रिएट अन एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जैसे सिस्टम वर्क करती है उसमें क्या होता है, अगर आप कोई एक विचार बार बार करते हैं तो वो इंप्रेशन बन जाती है, और वो इंप्रेशन आपके माइंड को चलाती है क्योंकि वो पावरफुल इंप्रेशन है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं एंड देन वी कंप्लीट लास्ट पार्ट ऑफ इट। जैसे एक छोटा बच्चा है, कैसे ये सारा चलता है सिंक्रोनाइजेशन में। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो उसको उसके पेरेंट है, अभी हम समझेंगे कॉन्शियस माइंड है ना। तो छोटे बच्चे ने आइसक्रीम को देखा और पेरेंट ने उसको आइसक्रीम दिलाया। तो अभी संकल्प किया कि आइसक्रीम खाना है, तो संकल्प गया बुद्धि के पास। अभी छोटा बच्चा तो इतना वो नहीं होता, तो पेरेंट डिसाइड करते हैं। तो पेरेंट ने बोला कि ठीक है खाओ। अच्छा आप बताइए, पहली बार आइसक्रीम खाया तो क्या होगा अभी ये डायग्राम के हिसाब से, क्विकली। उसको he will understand the taste कि हाँ, तो टेस्ट जो है ना वो यहाँ मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, इम्प्रेशन। हम्म, हम्म, हाँ, तो वो मेमोरी है ना उसमें स्टोर कैसे होता है, आइसक्रीम एक लेबल लगता है मेमोरी में। आइसक्रीम एक लेबल, जैसे सब्जी वाले लगाते हैं ना, ये सब्जी का ये भाव है, ऐसे यहाँ पर एक लेबल लगता है मेमोरी में, आइसक्रीम हम्म, डैश गुड और बैड, टेस्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो जैसे ही बच्चे ने पहली बार खाया ना, तो वो टेस्ट स्टोर हो गया, और हम्म, फिर दूसरी बार खाया, तीसरी बार खाया, तो वो इम्प्रेशन आइसक्रीम की जो है ना वो पावरफुल होती जाती है। नाइस, वेरी गुड टेस्ट, वेरी गुड टेस्ट। तो पहले है ना बच्चों को इच्छा नहीं होती है आइसक्रीम खाने की, माँ बाप दिलाते हैं तब खाते हैं। लेकिन फिर उनको जैसे हर सप्ताह में एक बार इच्छा होती है कि आइसक्रीम खाना है। वो जो इच्छा होती है ना वो यहाँ से आती है, 3 नंबर से, हम्म, क्योंकि वो एक इम्प्रेशन पड़ी है ना। जैसे ही वो संडे को फ्री होता है, उसको वो इम्प्रेशन बोलती है अरे आइसक्रीम खाना है, बहुत अच्छा था लास्ट टाइम। It's अच्छा, like experience, good or bad. हाँ एनीथिंग गुड और बैड डिपेंडिंग। तो अभी गुड एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से उसको थोड़ा, अगर बैड एक्सपीरियंस है तो वो नहीं आएगा, मतलब नहीं खाएगा, है ना। अभी गुड एक्सपीरियंस है तो उसने वो खाने का मन होगा, लेकिन जैसे जैसे वो रिपीट करेगा ना एक्शन को, ये ट्राइंगल के हिसाब से रिपीट करेगा, तो उसकी इंप्रेशन बहुत पावरफुल होती जाएगी। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में इंप्रेशन कितनी पावरफुल है, उस हिसाब से हमें थॉट्स आते हैं। तो पहले तो हमारा क्वेश्चन है कि माइंड को कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल करने से पहले समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट यू एज ए क्रिएटर पास्ट में अनजाने में बहुत बार एक ही चीज अगर सोची है, वही चीज यहाँ पर पड़ी है इंप्रेशन के फॉर्म में, और वही आपको परेशान कर रही है। और आपको लगता है कि मैंने तो अभी उसके बारे में कभी सोचा नहीं, इतने सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं।
तो ये 3 नंबर जो है ना वो 90% कंट्रोल करता है अभी कॉन्शियस माइंड। 90% इसलिए कहा कि इंप्रेशन इज वेरी पावरफुल। तो अभी आइसक्रीम का एग्जाम्पल, तो बच्चा अभी खाने लगा, तो पहले तो उसको महीने में एक बार इच्छा होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो इंप्रेशन पावरफुल होती जाती है, तो उसकी इच्छा अभी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आती है कि नाउ ही वांट्स आइसक्रीम एवरी डे। ठीक है। अच्छा, तो ये इन शॉर्ट कोई भी आदत जो हमें चलाती है ना, वो यहाँ पर स्टोर है। अभी इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ऐसे माइंड को जो सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल कर रहा है, हो रहा है? तो इसका एक सॉल्यूशन ये है, वन सॉल्यूशन। सीक्रेट क्या है? आप जो विचार बार बार करते हैं ना, वो इंप्रेशन यहाँ बनती है। मान लो अभी हमने किसी के बारे में रॉन्ग थॉट्स क्रिएट किए हैं बहुत समय से, तो यहाँ पर नेगेटिव इंप्रेशन है। तो हमारी मेमोरी जो है ना, सबकॉन्शियस मेमोरी, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा होता अगर डिलीट का ऑप्शन होता, तो हमें ये सारी क्लासेस करनी नहीं पड़ती। तो अभी सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि पहले समझो कि कैसे क्रिएट किया, किसने किया? हमने ही किया, उस व्यक्ति ने नहीं किया, हमने उसको देख के थॉट्स ऐसा किए। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि हम डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैकेनिज्म समझ में आ गया तो यहाँ से गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट इज द सॉल्यूशन। डिलीट इज नॉट द सॉल्यूशन। Do we recreate the things? हाँ, सो अभी यू क्रिएट न्यू इम्प्रेशन भाई कॉन्शियसली, बिकॉज आप क्रिएटर हो ना, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो आप कॉन्शियसली कुछ दिन के लिए, फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति के लिए ऐसे सोचिए कि फाइन, उस निर्दोष है बेचारा, उसने भी ये संस्कार के वश कर लिया, जैसा मेरे होता है उसका उसका होता है। तो अगर आपने कुछ दिन ऐसा रिप्लेस करने का प्रयत्न किया, हो सकता है वो रिप्लेस करते समय ये पुरानी आदत आपको परेशान करेगी। अरे ऐसे थोड़ी चलता है, इट डजंट वर्क दैट वे, जैसा जो होता है उसका ऐसे साथ ही ऐसा ही करना है। तो रिप्लेसमेंट के टाइम पे मुश्किलें आएगी, क्योंकि इंप्रेशन नेगेटिव पावरफुल है, वो मना करेगी आपको। लेकिन हमें बुद्धि एक गिफ्ट मिली है। बुद्धि से आप समझो, मैंने नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट की, चलो वो व्यक्ति सच में अच्छा नहीं है, लेकिन माइंड किसका खराब हो रहा है? माइंड किसका खराब हो रहा है? मेरा खराब हो रहा है ना। हमारा। तो अगर हमारा गोल है कि माइंड को कंट्रोल करना है, अच्छा थॉट्स अपने आप आना चाहिए, तो वी हैव टू कॉन्शियस। तो मेडिटेशन इज दिस एक्चुअली। मेडिटेशन माना ध्यान। हाँ, ध्यान किसका? ध्यान क्या चल रहा है उसको देखो। अगर सही नहीं चल रहा है तो ध्यान देकर रिप्लेस करो, कुछ दिन के लिए रिप्लेस करो, तो मेमोरी में नई इंप्रेशन क्रिएट होगी। और जब आप कॉन्शियसली रोज करेंगे तो पुरानी इंप्रेशन जो है ना, वो कंपेयर टू न्यू इंप्रेशन वीक होती जाएगी। तो जब मेमोरी में एक और इंप्रेशन क्रिएट हो गई और उसको आप पावरफुल बनाएंगे, तो आप देखेंगे 1 महीने के बाद 3 नंबर से ऑटोमेटिकली अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि पुरानी इंप्रेशन को आपने वीक कर दिया नई इंप्रेशन को पावरफुल बना के। तो हमारे पास वी हैव दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोलिंग द माइंड। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, एंड देन वी विल टेक क्वेश्चन एंड थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्विकली। तीसरा मतलब 3 रास्ते हैं माइंड में थॉट्स क्रिएट करने के। एक, आप कॉन्शियस होकर क्रिएट करो, पावरफुल कॉन्शियस होकर, जागृत होकर, ये याद रखे कि मैं ही क्रिएटर हूँ। जैसे ये हाथ है ना, अगर मैं आपको बोलूँ आप हाथ को ऊपर करो, तो आप डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना है। इसका मतलब आपका माइंड अभी भी पावरफुल है। अगर माइंड सच में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो मैंने आपको बोला हाथ ऊपर करो, तो हाथ नीचे जाएगा, इसको कहेंगे कि माइंड में प्रॉब्लम है? नहीं। अगर आप हाथ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हाथ भी थॉट से ही कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब आप जो चाहे वो थॉट्स कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं? ये 3 नंबर की वजह से, वो हमने समझा। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तो हमें लगेगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ पॉजिटिव थिंकिंग का, हो नहीं रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा ये पुरानी आदत है ना, वो परेशान कर रही है। और दूसरा रास्ता है सेंस ऑर्गन्स। आंखों के द्वारा हम जो देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, वो सीधा जाता है कॉन्शियस माइंड में। तो काफी सारे प्रॉब्लम जो है ना माइंड के अभी, इस टाइम यूथ के लिए, दिस टाइम, इट इज बिकॉज ऑफ द व्हाट दे आर सीइंग एंड व्हाट दे आर लिसनिंग एक्चुअली। इवन चिल्ड्रंस ऑल्सो, स्मॉल चिल्ड्रन जो नर्सरी से आगे जाते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है इट हैज बिकम अ टॉय। तो वो उंगली जो है वो डांस करती रहती है मोबाइल के स्क्रीन पे, बच्चों की भी। अभी वो बच्चों को पता नहीं है, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सारा जा रहा है सबकॉन्शियस में।
पहले वो बच्चा गेम खेलता है, 5-6 साल के बाद यूट्यूब में और भी कुछ वो दिखाता है, वो सजेशन देता है, तो बच्चे को इंटरेस्ट होता है कि ये क्या है। अभी उस उम्र में उस ऐसी चीजों को उसको देखना नहीं है, फिर भी वो क्लिक करता है, सारा सबकॉन्शियस में जाता है। और ये सबकॉन्शियस में जाने की वजह से फिर बच्चा सोता है तो उसको ड्रीम्स आते हैं, उसके आधार पर वो डर जाता है, और ये बच्चे का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि ये जो सेंस ऑर्गन से सब डेटा लिया ना, वो उसे परेशान करता रहता है, उसे समझ में नहीं आता। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है? माइंड को अगर कंट्रोल करना है तो शॉर्ट में, एक सेंस ऑर्गन्स जो है ना जिसको आप यूज करते हो, आप डिसाइड करो, आपकी बुद्धि का उपयोग करो कि ये देखने लायक है, ये मेरे काम का है। एक सिंपल एग्जांपल जो हमने बहुत बार देखा है, हमारा कोई गोल भी, जैसे रेसिपी है, एग्जांपल रेसिपी, अभी फ्री बैठे हैं, हाँ, तो यूट्यूब दिखा रहा है कि ये समोसा, वो समोसा, लेकिन आपका गोल नहीं है, समोसा खाने का भी गोल नहीं है, फिर भी रेसिपी देखने का मन होता है कि कोई आएगा तो बनाएंगे। अभी वो कौन कब आएगा पता नहीं, लेकिन रेसिपी, एक रेसिपी देखी तो ऊपर से दूसरा मैसेज आएगा, इससे अच्छी वाली रेसिपी। तो क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना, उसमें ऐसा डेटा जा रहा है जो हमने प्लान कुछ नहीं किया। हम सोचते हैं हम करेंगे, शायद वो देखने के बाद कभी करेंगे भी नहीं। तो क्या हुआ, वो सेंस ऑर्गन्स ने हमें डिसीव किया, फंसा दिया। यहाँ पर हमें पावर चाहिए बुद्धि की। बुद्धि वीक है ना, तभी ऐसा हो सकता है। बुद्धि स्ट्रांग है माना क्या, उसको लक्ष्य क्लियर है, मेरे काम का है कि नहीं काम, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मेरे काम का ढूंढ रहा हूँ। तो बिना काम का अगर वो प्रेजेंट कर रहा है तो उसको हमें देखना नहीं है। मतलब जिसको हम कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कोई आपको ऐसी बातें सुना रहा है जो आपके काम की नहीं है, सुनना तो पड़ेगा ना, मना करेंगे तो बुरा लगेगा। अभी सुनते हुए नहीं सुनो माना क्या? हाँ बताइए आप, डायग्राम के हिसाब से सुनते हुए नहीं सुनो माना क्या, कौन सा फंक्शन काम करना पड़ेगा? Intellect. इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का एक फंक्शन है ना, एनालिसिस। Mm. एनालिसिस मत करो, भले वो सुना रहा है, डोंट एनालाइज। अच्छा, तो ये आप कब कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि ये नहीं कर पाते हैं, जैसे ही ऐसा देखा तो एनालिसिस करने लग पड़ते हैं, अच्छा नहीं बोला ऐसा। तो एक आप कोई एग्जाम्पल मुझे दे पाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ का, कि कहाँ पर हम ये चीजें नेचुरली करते हैं, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, कहाँ करते हैं? जब कभी पेरेंट्स आप मार्केट, हाँ जी, जब पेरेंट्स समझाइश देते हैं ना, तो हम सुनते हुए भी नहीं सुनते अच्छा, हैं। दैट ओके, हैपेंस। दैट टाइम। दूसरा, मार्केट में हम सब्जी खरीदने जाते हैं ना, मार्केट में बहुत सारी आवाज होती है, इतनी आवाज होती है ना, तो भी हमें परेशान नहीं करती है। क्यों? बुद्धि जो है ना, बुद्धि वो एंगेज है अपना काम करने में। तो बाहर से बहुत सारे लोग आवाज कर रहे हैं, तब भी आप कंप्लेन नहीं करते, आप अपना सब्जी लेके घर चले जाते हैं। क्या हुआ? सुना, आवाज तो आती है ना, लेकिन नहीं सुना, क्योंकि बुद्धि जो है ना वो एंगेज है, क्योंकि लक्ष्य कंप्लीट क्लियर है। लक्ष्य है कि ये लेके मुझे चले जाना है। तो प्रॉब्लम कब आती है, सुना और सुनने की इफेक्ट कब आ जाती है? जब बुद्धि, लक्ष्य नहीं है, तो बुद्धि को In लक्ष्य a देना way, पड़ेगा। we need to train our mind. यस, दिस इज द वे। तो बुद्धि को लक्ष्य देना पड़ेगा कि ये मेरा लक्ष्य ही ये है कि फालतू बातें नहीं सुनना है। अगर आपने लक्ष्य दिया है, तब अगर फालतू बातें कान में आएगी तो बुद्धि कहेगी नहीं, लक्ष्य दिया है, मुझे ऐसा करना है। ठीक है? तो तो इन शॉर्ट, माइंड आप देखिए, पहले तो अनकंट्रोल कैसे होता है, जब आप फ्री होते हैं ना तब वो अनकंट्रोल होगा। तो जितना हो सके अच्छी टेक्निक क्या है, आपका स्केड्यूल रखो सुबह से शाम तक का, जो भी है, पढ़ाई का, खाना बनाना, जितना हो सके डायरी में स्केड्यूल रखो। तो आप देखेंगे लक्ष्य के हिसाब से जो शेड्यूल होगा तो कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3 नंबर वाला 1 नंबर वाले को खटखटाएगा कि कल उसने ऐसा किया था, लेकिन 1 नंबर वाला बिजी है, तो वो मैसेज आ रहा है। जैसे कभी कभी व्हाट्सअप आप देखते ही नहीं है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं ना तो पड़े हैं। ऐसे ही 3 नंबर से 1 नंबर, बहुत सारे मैसेज वेट कर रहे हैं, लेकिन आप चांस ही नहीं देते उसको। और दूसरा, ये सेंस ऑर्गन्स वाला। तो जित सो मोर वी यूज अवर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, मोर उसका फायदा होता है। तो क्वेश्चन लेने से पहले हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, मे बी जस्ट 5 मिनट्स। और अभी हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसमें हम आपको एक सिंपल ट्रिक, जिससे माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहे, ऐसी एक टेक्निक हम ट्राई कर रहे हैं। जो जो हमने देखा ना रिप्लेसमेंट, वो तो टाइम की बात है, टाइम लगता है, लेकिन हम मेडिटेशन अभी करेंगे छोटा सा, और देखेंगे कुछ फर्क पड़ता है माइंड में। ठीक है? तो
या सो हम अभी करेंगे, ठीक है। तो सिट कंफर्टेबली, सिट कंफर्टेबली। फर्स्ट स्टेप, कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, फॉर फ्यू सेकंड्स, जस्ट वॉच योर थॉट्स, जस्ट ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस नहीं करिए। Now you will notice many thoughts coming based on the class going on, और 1 घंटे पहले क्या हुआ उसके आधार पर, रिसेंट मेमोरी जो है उसके आधार पर। और कुछ एक थॉट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं। मान लो कि घर में कुछ पानी का प्रॉब्लम है, उसके विचार आ रहे हैं, और जैसे ही वो विचार आता है तो माइंड टेंशन में आ जाता है, अरे बहुत लीकेज हो रहा है, क्या करे। अभी आई एम गिविंग यू वन वर्ड, उस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है। माइंड कैसे एक शब्द के द्वारा वर्क करता है। एक शब्द हम आपको दे रहे हैं, अच्छा, हम दे उससे पहले आप में से कोई बताएगा, ऐसा कोई शब्द आपके ध्यान में आ रहा है लाइफ में, ऐसी कोई, ऐसा कोई अनुभव याद है कि वो शब्द जो है, अगर याद रहे तो हम इजी रहता है। हाँ, फ्यू सेकंड्स, आप सोच के बताइए, ऐसा कोई शब्द है जो अगर अनुभव में आ जाए तो हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं। चिल, ओके। और कोई? ठीक है। रिलैक्स्ड, ओके। हाँ, लेकिन एक शब्द जिससे माइंड माइंड को अच्छा लगे। जैसे कुछ चाहते हैं और वो मिल गया। मे नॉट बी, ये शब्द मतलब ऐसा कि अ, जैसे मान लो आप कहीं गए हैं, किसी और के घर पे, तो आप क्या बन जाते हैं? एक गेस्ट। गेस्ट, है ना। तो अगर आपको पूछा जाए कि जब आप किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं तो माइंड का बिहेवियर कैसा होता है, वहां पर प्रॉब्लम बहुत। होती है ना। नहीं आती। वहां पर प्रॉब्लम होती है, फिर भी हम कहते हैं अरे हमें तो जाना है 2 दिन के बाद, तो माइंड रिलैक्स रहता है। फिर वहां पर जो भी चीजें है, माइंड फील नहीं करता कि ये मेरी चीजें है, तो उसको लगता है वो तो उनकी है ना, भले जैसी है, मुझे तो 3 दिन में जाना है। तो गेस्ट जो है ना, गेस्ट, अगर गेस्ट याद रहता है ना कि गेस्ट है, तो हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वापस जाना है, हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे एंजॉय करना है। तो माइंड है ना, कंप्लेन नहीं करता है। ठीक है, अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं। नाउ कुछ एक सेकंड्स के लिए अपने आप से पूछिए, क्या हम इस दुनिया में गेस्ट है? सिर्फ पूछिए। और आगे पूछिए, अगर गेस्ट है इसका मतलब क्या, उसके ऊपर मनन कीजिए। अगर गेस्ट है इसका मतलब क्या। हम अभी माइंड मेडिटेशन बना क्या है, ऐसी चीज पर ध्यान जो माइंड को अच्छा करेगा, शिफ्टिंग द फोकस। तो अगर गेस्ट है तो कुछ फर्क पड़ेगा? तो जवाब आता है हाँ। कोई है यहाँ पे जो कहता है कि, दुनिया में भी कोई है जो कह सकता है कि मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं तो यहाँ परमानेंट रहने वाला? नो बडी सेज दैट। तो पता तो हमें है, ऐसा नहीं है कि अभी ही पता चला, सबको पता है गेस्ट है। गीत भी बनाते हैं गेस्ट पर, लेकिन एक्शन में, प्रैक्टिकल लाइफ में अवेयरनेस में नहीं है कि हम गेस्ट है। तो माइंड जब भूल जाता है कि वो गेस्ट नहीं है, हम गेस्ट नहीं है, तो वो मेरा मेरा करने लगता है। ये मेरा है, वो मेरा है, या आपका है।
और सारे के सारे उसके विचार है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मेरा है तो खोने का डर होता है, तो खो जाएगा तो उसके लिए दूसरा लाना पड़ेगा, तो वो दूसरा लेने जाता है, तो वो फंसता जाता है। और तब जाके माइंड जो कंट्रोल्ड था गेस्ट अवेयरनेस में, वो अब अनकंट्रोल होने लगता है। जितना जितना मेरा मेरा बढ़ता जाता है उतना उसका माइंड अनकंट्रोल्ड होता जाता है, उसे पता नहीं चलता। कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपीरियंस करें, गेस्ट है हम यहाँ पर, मेहमान है। जो भी आंखों से दिखाई देता है, जो भी कानों से सुनाई देता है, वो सारा मेरा नहीं है, टेम्पररी यूज करने के लिए दिया है। घर दिया है, गाड़ी दी है, पढ़ाई के लिए बुक्स दी है, एग्जाम के पेपर्स दिए हैं, सब कुछ टेम्पररी दिया है अनुभव करने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें। तो जब माइंड अनुभव करता है कि गेस्ट है यहाँ पर, तो तुरंत ही वो फ्री हो जाता है, उसकी एंजाइटी बंद हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये फॉरेन वर्ल्ड है। तो इस प्रकार से छोटा सा अभ्यास 1 मिनट का, एवरी 1 आवर, सिर्फ आपको हर 1 घंटे 1 मिनट के लिए आंख खुली रखे या बंद करके जैसे अभ्यास करना है कि गेस्ट है, तो कोई कंप्लेंट्स होगी तो ऑटोमेटिकली याद आएगा कि क्यों इतनी कंप्लेंट्स। और फायदा ये होगा, माइंड फ्री रहेगा, इसकी वजह से ज़्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं होगी, पास्ट की नहीं होगी। तो फ्री माइंड वर्क्स बेटर। ठीक, थैंक यू। तो थिंक कवर कर लिया सब कुछ। किसी को भाई जी है आप यहाँ पे? हाँ प्रीतिश भाई, मैं हूँ। थैंक यू हाँ, सो मच। yeah, आई थिंक बहुत ही अद्भुत और बहुत टेक्निकल सेशन था। मतलब पहली बार मैंने इतना डिटेल में समझा। मतलब अभी तक हम टेक्निकल चीजों में एरो डायग्राम्स बनाते हैं कि इसके बाद ऐसा होगा, प्रोग्रामिंग में बनाते हैं, लेकिन ये माइंड बहुत ही इतना, हाँ, इतना कॉम्प्लेक्स है और आपने इतना सहज करके समझाया। जस्ट वंडरफुल भाई जी। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग सीरियसली। और जो लास्ट का आपका मेडिटेशन था वो इतना गहरा था, मतलब कुछ शब्दों का मेडिटेशन था, लेकिन उसकी लाइटनेस फील की जा सकती थी कि जो गेस्ट वाली मेमोरी है, जो गेस्ट वाली अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उससे हम कितने लाइट रह सकते हैं और कितनी सारे थॉट्स को अपने आप रोक सकते हैं। अभी हम ऑडियंस को चांस देंगे, उनके जो भी क्वेश्चंस है वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सो मनोज जी, आप हाथ उठा रहे हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब आप बोल तो रहे हैं, लिपसिंग तो दिख रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है मनोज हाँ, भाई? हाँ, अभी तो आप क्या बोलते हैं, म्यूट पे चले गए हैं, अनम्यूट करके बताइए। और किसी का क्वेश्चन है हेलो। जब तक? हाँ, हाँ, हेलो। अभी, हाँ, हाँ, अभी सुन पा रहे हैं। हेलो। यस, जी, जी, मनोज जी, अभी सुन पा रहे हेलो। हैं, बताइए। हेलो, आई थिंक हाँ, सुनाई दे रहा है। मनोज जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप क्वेश्चन, आई थिंक ही ड्रॉप। एनीबडी एल्स हैज ए क्वेश्चन? किसी और का कोई प्रश्न है? काफी इंटरेस्टिंग सेशन था, थोड़ा टेक्निकल हो गया था, आई अंडरस्टैंड कि अगर आपने शुरू से नहीं सुना होगा तो मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, हम इसकी रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। तो आप क्या हेलो बोलते सर। हैं? हेलो। हाँ, 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 बोलिए, सुनाई दे रहा है। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही। सर नमस्कार एंड ओम शांति। नमस्कार। सर थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम को समझिएगा, इससे रिलेट कर रही है और मेरे को लग रहा है कि आप जैसे थोड़ा सा सॉल्यूशन भी दे पाएंगे, क्योंकि आप उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिससे रिलेट मेरी समस्या करती है। सर मैं जब सोता हूँ ना रात को, हेलो, रात को सोता हाँ, हूँ हाँ, तो बोलिए। नींद आ जाती है, तो जैसे ड्रीम्स चलते हैं ज्यादा, तो वो जैसे 10 साल पहले के, 5 साल पहले के, 15 साल पहले के, अभी करंट से रिलेट करके चलते रहते फिल्म के माफिक। तो वो सुबह उठते तक 3 घंटे 4 घंटे तक वो ड्रीम्स चलते हैं, तो मैं काफी परेशानी से, मतलब एक डीप स्लीप नहीं होता है,
तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है बहुत। पिछले कोरोना से बाद मेरे को प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ये कोरोना काल के बाद। तो ये एलोपैथिक दवाइयां लेने के बाद भी बढ़ती चली गई, और इसमें मैं ना कोई सोल्यूशन नहीं ले पाया एलोपैथिक डॉक्टर से या मेडिसिन से। तो मेडिटेशन वैसे मैं करता हूँ दिन में, तो लेकिन जैसे डीपली, जैसे अभी आपने समझाया ना, इसका डीपली इसका रूट केज नहीं पता कर पाया, इसको खत्म नहीं कर पाया मैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आप समझा रहे हैं, तो इसमें शायद इस समस्या को हल किया जा सकता है, बिना एलोपैथिक दवा के भी हल किया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो शायद उसका आंसर इतना इजी नहीं है अभी। फिर भी मे बी आप हमारी टीम से कनेक्टेड रहिएगा। टीम में भी कुछ एक लोग हैं जो आपको हेल्प कर पाएंगे। और शॉर्ट में बेसिकली पूरा दिन में तो एक्चुअली होता क्या है, ये डायग्राम के हिसाब से जब आप सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड जो है वो फ्री होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो जब कॉन्शियस माइंड फ्री होता है तो पुरानी जो मेमोरी है, जिस मेमोरी को आपने भूतकाल में ज्यादा महत्व दिया है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भूतकाल में उस बातों को आपने बहुत वैल्यू दी होगी, ऐसी हाँ बातें जी, हाँ जी, परेशान करेगी। ऐसा हाँ जी, व्यक्ति स्वप्न में आएगा, उसके साथ हाँ जी, बदला लेना, ऐसा कुछ हाँ होगा। जी, उनसे रिलेट करते हुए बातचीत। हाँ, तो बेसिकली अभी वो तो मेमोरी में आ गया है, तो वो हाँ ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। अभी आपको सोते समय, खास करके सोते समय हाँ जितना जी, हो सके मेडिटेशन अच्छी तरह से, मतलब एक्यूरेट क्वालिटी एक्सपीरियंस करना है। फॉर एग्जांपल आज ठीक है। गेस्ट का हमने किया, तो हाँ जी, बस आपको ये अभ्यास करना है प्रॉपरली। और जब आप इस तरह से सो जाएंगे, तो अभी ही आपने 15 मिनट एक्सपीरियंस करके सबकॉन्शियस माइंड में वो डाला है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जो अभी ऊपर है वो ऊपर आएगा, इसलिए वो ड्रीम्स कम होते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। और ज्यादा आपको हेल्प चाहिए तो हमारी टीम में भी काफी एक्सपर्ट्स है, उनसे भी कांटेक्ट कीजिएगा, है ना? सर, उनका जैसे मेरे को कौन हेल्प कर सकता है, खास कोई नंबर या कोई व्यक्ति ये जो मेरा? रक्षम भाई, आप कुछ हाँ गाइड करना चाहेंगे? हाँ हाँ, यहाँ पे रितांशु भाई है हमारे साथ में, रितांशु ओझा। रितांशु काउंसलर हैं। तो रितांशु से आप संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने अपना नंबर भी दिया है। ओके। क्या नंबर है तो सर? नंबर नंबर मेरे को चाहिए। 7999 7999 60 60 9202। 920। भाई जी एक बार सुनना, 7999 हाँ 60 हाँ, 920। 9202, एक और बार 2। अच्छा, 9202। राइट। रितांशु। ठीक है, ठीक। क्या नाम है? रितांशु रितांशु। रितांशु। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ। हमारे पास एक और और क्वेश्चन है। एक हेलो। और एक हेलो मनोज भाई, हाँ एक सेकंड है। मनोज भाई, हाँ जी, हाँ अ, जी, एक चीज सिंपल आप पूरा दिन में प्रैक्टिस करना है, हाँ जी, अ, कि अगर आप गेस्ट है ना, तो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी कुछ हो गया और होने वाला है, उसकी हाँ जी। वैल्यू आप उसकी वैल्यू आप 100 टाइम्स कम कर दो। ठीक है। हाँ, जैसे मान लो आपको कोई 5 फुट का व्यक्ति दिख रहा है, कोई आपको हाँ लगता है जी, वो परेशान कर रहा है, उसकी हाइट हाँ को जी, 100 टाइम्स कम कर दो तो छोटा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ तो जी, जैसे छोटा हो जाएगा ना, उसकी हाँ वैल्यू जी, कम हो जाएगी, तो हाँ उसके जी, विचार भी कम हो जाएंगे। हाँ जी। ये नहीं, आप ट्राई जैसे करना। जैसे ये तो मेरे को प्रॉब्लम तो रात के टाइम रहता है, तो वो तो ठीक है, वो अनकॉन्शियस आप में से निकलता है। हाँ, वो आप डिटेल में डिस्कस करना भाई जी के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक लेकिन है। आप थैंक ये यू। एक दो चीजें बताए आपको। हाँ जी, ठीक नेक्स्ट। है। थैंक यू। सर। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ये पूछना था, अफर्मेशन कैसे वर्क करती है टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, ओके। तो अफर्मेशन पहले तो हम क्रिएटर है, राइट? सो नंबर वन से थॉट क्रिएट किया, माइंड में गया, राइट? लेकिन आपने अफर्मेशन तो किया, अफर्मेशन किया कि कभी कभी कहते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा। आपने अफर्मेशन किया, फॉर एग्जांपल आपने अफर्मेशन किया कि मैं हेल्दी हूँ, लेकिन आपने एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्दी हूँ। तो जो इंटेलेक्ट है ना, इंटेलेक्ट, बुद्धि जो है, यस। हमने समझा ना बुद्धि। जी तो बुद्धि 4 चीजें करती है, उसमें लास्ट चीज उसका एक्सपीरियंस है, विजन होता है उसका। ओके। आपने अफर्मेशन किया, लेकिन अंदर से आपको डर है, अंदर से आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ? हम्म। आपने अफर्मेशन किया कि मैं निडर हूं, लेकिन अंदर से आप समझे नहीं कि मैं कैसे निडर हूं। जी तो जी। क्या होगा? अफर्मेशन जो है उसका अनुभव नहीं हुआ ना बुद्धि के द्वारा। हम्म। तो हाँ। बुद्धि के द्वारा अगर वो अनुभव सही नहीं हुआ, तो मेमोरी में वो सबकॉन्शियस में फिट नहीं होता है। जी जी। तो आपको क्या करना है, जो चीज आप अफर्मेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, समझना है हम्म। कि वो जाएगा तो सबकॉन्शियस में, लेकिन अनुभव क्या है, वो इंटेलेक्ट जो है ना, वो कैसे स्ट्रांग है कि वीक है। ओके। तो एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट अफर्मेशन ठीक में। है। कई लोग जैसे मंत्र करते हैं ना भक्ति में, तो मंत्र जी जी करते जाते हैं, लेकिन मंत्र समझे नहीं, अनुभव ही नहीं है, तो वो असर नहीं जी। करेगा। सर लेकिन मैंने
कहीं सुना था, पढ़ा भी था, मतलब मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रही हूँ। मैं नेवल गोडार्ड के टीचिंग्स मैंने सुने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। तो मुझे ये ऐसा समझ में आया, और इवन मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि हम जब फर्स्ट टाइम अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं जस्ट अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए, हाँ, मतलब लेकिन वो पहले इतना, कुछ भी। हाँ वो इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आप डायग्राम में देखें ना तो बहुत पुराना हमारा पास्ट बर्थ का भी डेटा रहता है। तो जी कभी जी। कभी क्या होता है, कोइंसिडेंटली वर्क कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्व हो गया। ओके। सो अच्छा। और उसका मेथड होता है, तो हमारी टीम गाइड करेगी ग्रुप में आपको, अगर इंटरेस्ट है तो, है ना। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रीतेश भाई, क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, हाँ, आप अच्छा, देख। ओके। हाँ। Question: We understand and we have that wisdom that we are guests. Ultimately, nothing is ours would matter at the end. But in the present, certain things matter. Life is collection of momentarily things matter, so it becomes difficult to surrender or completely let go. Okay, तो इसमें बेसिकली है ना, uh, कैसे समझेंगे? हाँ, तो ये जो गेस्ट का एग्जांपल लिया ना हमने, तो प्रैक्टिकल में क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में इम्प्रेशन नहीं है कि हम गेस्ट हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्शियस में हमने थोड़ा प्रैक्टिस किया, तो हमारा गोल ये है कि हम नेचुरली फील करें कि हम गेस्ट हैं। दूसरा, एक सिंपल हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई एक्टर है, एक ड्रामा चल रहा है, कोई एक्टर है, और वो एक्टर हाथी का रोल प्ले कर रहा है फॉर एग्जांपल, राइट? तो आप बताइए, हाथी का रोल जो प्ले कर रहा है उसमें मोमेंटरीली सब कुछ आएगा, रोना भी पड़ेगा, कुछ एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन जो हाथी का मास्क पहना है ना एक्टर ने, वो एक्टर जो होता है ना, वो अंदर से फ्री रहता है, एक्टिंग सब करता है, अंदर से फ्री रहता है। तो यहाँ पर जो डिफिकल्ट होता है ना, सरेंडर और लेट गो, वो इसलिए फीलिंग आती है कि हम उसमें ग्रॉस में फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम तो एक्टिंग करने वाले हैं, गेस्ट है। अगर वो मेमोरी में रहेगा, कॉन्शियस माइंड में रहेगा, तो आपको फ्रीडम लगेगी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो अभी इंप्रेशन नहीं है ना, इसलिए तुरंत ही वापस थोड़े टाइम के बाद आपको डिफिकल्टी लगेगा। तो ये एक अंदर गेम चलता रहता है, फाइट चलता रहता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। लेकिन जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि ये सारा कुछ सारा हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो एक हम जैसे पार्ट प्ले कर रहे हैं एक्टर के हिसाब से, तो आपको फायदा होगा। ठीक है। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी और के कोई क्वेश्चंस? नो? ओके, सो प्रीतेश भाई, आप कुछ लास्ट एंडिंग वर्ड्स, एंडिंग सजेशंस देना चाहेंगे कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए कंसिस्टेंटली हमें कुछ करना चाहिए, या कुछ डेली ऐसी चीजें करना चाहिए, और समथिंग, एनी फाइनल नोट्स फ्रॉम यू? या सो एक तो ये कि याद रखिए कि हम मास्टर है, हम मास्टर है। जैसे आप अपना हाथ है, तो हाथ को कंट्रोल कर पाते हैं, तो हाथ कंट्रोल होता है आपके माइंड से। तो इसका मतलब अभी भी आपका माइंड कंट्रोल में ही है। तो ज्यादा ऐसे थॉट्स क्रिएट ना करें कि माइंड कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में ही है। तो मास्टर समझिए अपने को, नंबर वन, यहाँ पर जो 1 नंबर का दिखाया। सेकंड जो है, जो सेंस ऑर्गन्स है, खास करके आंखें और कान, उसको आप मालिक बन के उपयोग कीजिए। माना वो आपके ऑर्गन्स है, तो आपको जो चाहे वही देखना है, जरूर नहीं, जो नहीं देखना है वो मत देखो। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी में कुछ समाचार आ रहे हैं, अभी वो समाचार आपका कुछ काम नहीं है, उससे लेना देना नहीं है, तो आपने हेडलाइंस पढ़ लिया, तो डिटेल में सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जितना सुनेंगे उतना वो सबकॉन्शियस में डेटा जाएगा, और रात को आपको शायद उसी का स्वप्न भी आ सकता है जो समाचार सुना, राइट? तो ये ध्यान रखना है, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, जो आपका काम का नहीं है। गोल के हिसाब से इंटेलेक्ट को ट्रेन कीजिए, बुद्धि को। और ये जो हम अभी सुन रहे हैं ना, उसको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। क्लास के समय अच्छा लगेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम नहीं हुआ है। और तीसरा, ये जो अवेयरनेस है ना कि हम वास्तव में तो गेस्ट है। जन्म होता है तो कुछ लेके नहीं आते हैं, जाते हैं तो कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम है वो ट्रस्टी है। जैसे कोई बैंक में मैनेजर होता है, राइट? तो इतना सारा पैसा संभालता है, लेकिन उसको चिंता नहीं होती है खोने की, क्योंकि उसे पता है मेरा नहीं है, मैं तो ये बैंक का ट्रस्टी के हिसाब से संभाल रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है जो हर घंटे आप कर सकते हैं। गेस्ट है, ट्रस्टी है, हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ? तो एंटरटेनमेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, चिंता करने के लिए ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। और एक अच्छी बात जो अभी याद आई, हाँ आपको बताऊं,
पास्ट को कैसे भूलना है, उसकी ट्रिक बताओ। यस यस प्लीज। क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम 3 नंबर वाली सबको है, पास्ट को कैसे भूलना है। तो आप देखिए, कहीं आप ट्रैवल करते हैं ना ट्रैवलर के हिसाब से, तो ट्रैवलर क्या करता है, जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक अच्छा एग्जांपल है। तो आप विंडो से देख रहे हैं, तो एक झाड़ आया, उसके बाद कुछ और आया, तो ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, क्या आप पीछे जो झाड़ गया उसकी चिंता करते हैं? तो नहीं। ट्रैवलर का ये वर्च्यू है। कोई भी ट्रैवलर होता है ना, वो क्या करता है, उसे पता होता है कि ट्रैवलर है। तो जो ट्रैवलर होता है ना, वो नेचुरली प्रेजेंट में रहता है, क्योंकि उसे तो एंजॉय करना है ना प्रेजेंट को। तो वो जहां भी जाता है ना, पास्ट को लेके नहीं जाता है, पास्ट जो उसने देखा उसको छोड़ देता है जैसा भी था। समझ में आ रहा है? अगर वो सोचिए आप, ट्रैवलर अगर पास्ट को पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? आगे नहीं तो बढ़ वो पाएगा। तो वो ट्रैवलर ही नहीं है ना, अगर वो पास्ट को पकड़ के रखता है। अगर वो पास्ट को पकड़ के रखता है तो वो रियल में ट्रैवलर नहीं है। तो ट्रैवलर की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ट्रैवलर है तो लेट गो पास्ट नेचुरली होता है, क्योंकि आप उससे अटैच नहीं हो जाते हैं। अगर आप ट्रैवलर नहीं है तो अटैच हो जाएंगे। और लास्ट में, आप ट्रैवलर है और आप कोई शहर में गए और वहाँ जहाँ पर रुके हैं, वो आपको कहते हैं कि ये सोफा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, आप ले जाइए। आप ले जाएंगे? आप ले जाएंगे सोफा? नहीं सर। नहीं ले जाएंगे ना, क्या कहेंगे आप? लाइट ट्रैवल करना है, इसलिए लाइट वेट करना है, हम ये सोफा ले नहीं जा सकते, कितना भी महंगा है ना। हम्म। तो ये अवेयरनेस जो है ना ट्रैवलर की, उससे दो फायदा होता है। पास लेट गो अपने आप होता है, तो माइंड में बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। देखा ना, पास्ट अगर आप ट्रैवलर फील करेंगे ना, 3 नंबर का पूरा नेचुरली बाईपास हो जाएगा। ट्रैवलर हमेशा कॉन्शियस रहता है कि मुझे तो ट्रैवल करना है। तो लेट गो अपने आप होता है। दूसरा, जर्नी करते समय कुछ ऑफर आएगी, ये ले लो वो ले लो, तो कहेगा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है बैग में। ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, बोलेंगे उसकी बात सुनाऊं, तो बोलो नहीं भी, मेरे माइंड में जगह नहीं है। ठीक है। हम्म, तो ये थोड़ा टिप्स बताया, थैंक यू। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अद्भुत। मतलब थैंक यू। आई थिंक शब्द नहीं है। मेरी फ्रेंड मुझे अभी व्हाट्सएप पे मुझे लिख रही है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग द लिंक। तो मैं सक्षम को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने हमसे ये लिंक शेयर किया। और प्रीतेश भाई, आपने बहुत ही अमेजिंग तरीके से, मुझे लगता है बिल्कुल ना भूलने वाली तरीके से, कि आई थिंक ये कभी भी लगता है कि मेमोरी में एकदम कॉन्शियस माइंड में आ गया है। होपफुली विल ट्राई टू प्रैक्टिस फॉर श्योर। जस्ट रिपीटेड और प्रैक्टिस। और यस, मेरी स्क्रीन तो फ्रीज हो गई है। थैंक यू। और आपने एक लिंक भी शेयर किया है मेडिटेशन क्लब का, हमने उसको भी ज्वाइन कर लिया है। तो क्वेश्चन है, लेना है अभी ग्रेटनेस। सक्षम में? थैंक यू। हाँ एक क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, क्लास क्वेश्चन अमीशा का है। अच्छा, हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड मेमोरीज एंड विथ बैड मेमोरीज आई कैन फील द पेन लाइक रिलीविंग इट। हाँ, तो इसमें है ना, एक्चुअली सबसे पहले जब बैड मेमोरीज, अभी आपको समझ में तो आ गया, यू अंडरस्टूड ना, कि 3 नंबर से 1 नंबर पे आता है वो प्रॉब्लम करता है। सारा का सारा 3 नंबर से जो आ रहा है ना, वो बैड मेमोरीज वहां से आ रही है। तो बैड मेमोरीज तो हम जो है उसको कुछ नहीं कर सकते। तो एक हमने सीखा था, रिप्लेस विद द न्यू मेमोरी, नंबर 1। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम यह होती है कि ये जो पुरानी मेमोरी है वो कॉन्शियस माइंड को पकड़ के रखती है, उससे कैसे छूटे। तो अभी बताया ना, अभ्यास कीजिए, एवरी 1 आवर ट्रैवलर है, ट्रैवलर है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे ना तो नया इंप्रेशन बनेगा। और जैसे ही ट्रैवलर का इंप्रेशन बनेगा ना, तो 3 नंबर से कॉन्शियस माइंड में वो बंद हो जाएगा बैड मेमोरी जाने का, क्योंकि ट्रैवलर है ना। तो एक ये है। दूसरा, ये सिंपल ये है कि जब भी प्रैक्टिकल में आपको बैड मेमोरीज के आधार पर थॉट्स आ रहे हैं, तो आप जैसे आप ट्रैफिक में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक में हैं और ट्रैफिक में बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, कोई अच्छा चलाते हैं, कोई अच्छा नहीं चलाते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो सारे को साक्षी होकर देखते हैं, लेकिन आप अपनी गाड़ी अच्छी चलाते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि ये सारा ट्रैफिक जो है ना माइंड में होता रहता है, उसको आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, बिना एनालिसिस के। इसको हम कैसे कहेंगे कि बैड मेमोरी से थॉट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट से अगर बचना है, उसकी इमोशन से अगर आपको बचना है, तो क्या करना है। तो जिसने भी प्रश्न पूछा है, क्या आप बता सकते हैं, हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एक गर्म पानी का प्याला है, हॉट वाटर ग्लास,
हाँ, उसको आप टच करेंगे तो क्या होगा, कोई भी बता सकता है। उसको आप, गर्म है फिर भी आप पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, हाथ जलेगा। हाथ जलेगा ना। और आप अभी पकड़ के रखते हैं और बोल रहे हैं मुझे बचाओ 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 बचाओ, बहुत बैड एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आप पकड़ के रखेंगे तो कभी भी बच नहीं पाएंगे ना, क्योंकि गर्म है तो वो गर्म की इफेक्ट तो आपको लगेगी ही लगेगी। तो व्हाट यू शुड डू, हाँ ये अ, जलने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि वो गर्म है, अच्छा नहीं है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे कि छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना। तो जो अगर आप छोड़ देंगे ना, भले वो ग्लास गर्म है लेकिन आपने छोड़ दिया, तो पहले तो आप बच गए उस बैड एक्सपीरियंस से। और क्योंकि अभी आप बच गए और आपको पता है कि वो गर्म है, अगर बाई चांस आपको उस गर्म को हैंडल करना है तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट लेंगे उस कप को पकड़ने के लिए, तो आप बच गए। ठीक है, इसी तरह बैड मेमोरीज जो है ना, वो हॉट वाटर ग्लास की तरह है। आप क्रिएटर है, आप ट्रेवलर है, आप जागरूक होके उसे पकड़िए मत। ऐसा समझिए कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो हो रहा है, चिंता भी मत कीजिए कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। सिर्फ जैसे आपने ग्लास को छोड़ा तो गर्मी से बच गए, जलन से बच गए, तो आप जागरूक होके ऐसे थॉट्स जब आते हैं ना, आएंगे, लेकिन जब आते हैं ना उसको साक्षी होकर देखिए, सिर्फ उसे पकड़िए मत, एनालिसिस मत कीजिए। तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन आपने पकड़ा नहीं है ना, तो बैड इफेक्ट नहीं आएगी। तो जैसे ही आपको अच्छा फील होगा तो ऑटोमेटिकली आप उस जागरूक अवस्था में, जैसे आपने गरम ग्लास पानी का ग्लास है उसको हैंडल से पकड़ा, ऐसे इसी विचारों को अच्छे थॉट्स करके आप भगा देंगे। तो ये आपका शॉर्ट में आंसर है, ठीक है। थैंक यू प्रीतेश भाई। आई थिंक हाँ, यस। मेरा एक सवाल जस्ट है मेरा। ऑब्जर्व, एक सेकंड, जस्ट ऑब्जर्व एंड डोंट अटैच विद दैट। आप ऐसे थॉट ऐसे नहीं समझो कि मैंने ऐसा किया था, मेरी गलती का फल है। ये सब तब होता है जब आप उससे अटैच है। अगर आप वो थॉट को छोड़ ही दिया, अलग ही कर दिया, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छा थॉट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप डिटैच हो जाएंगे ना, तो आप पावरफुल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे गर्म ग्लास का पानी है ना, तो आप अटैच्ड है, तो सारा का सारा आपका पावर गर्म पानी के ग्लास ने ले लिया, तो आप पावरफुल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने हाथ हटा दिया ना, आप डिटैच हो गए ग्लास से, अभी आप पावरफुल है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया थोड़े समय के लिए, तो आप डिटैच्ड हो गए उससे, और अभी आप डिटैच्ड हो गए तो आप पावरफुल हो गए। तो तुरंत ही आप उसको रिप्लेस कर दो कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, आई डोंट वांट। ठीक है अमीषा में। जस्ट वन क्वेश्चन, आई डोंट हाँ नो हाँ, इफ इट्स या कितना वो गो है। अहेड, नो इट्स फाइन। आई डोंट नो। जैसे कि क्या कभी हमने कुछ ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, और क्या हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है अच्छा विद दीज टेक्निक्स? सॉरी, अच्छा ऐसा कुछ डेटा है ऐसा? या मतलब अगर कोई ऐसे लोगों के साथ काम हुआ है और कुछ हाँ हाँ। अच्छा रिजल्ट मिला हो हमें। तो ऐसे ऑफिशियल तो कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने खुद इस आधार पर हमारे ही रिलेटिव्स में कुछ एडल्ट लेवल के लोग थे, हम्म। around 40-45 years of thing, and they were going through worst depression and all. So हम्म। uh, they were kind of going to the psychologist also, but right now they are free from that. ओके। Or not only free from that, but they are on this journey of understanding the truth and practicing the things which helps them. So वो naturally वो practice भी कर रहे हैं, और yeah, so it has resulted. और जैसे जो यंग बच्चे हैं आजकल और बहुत ज्यादा ये मेंटल इलनेसेस आ रही हैं, तो हाउ टू मोटिवेट देम टू एटलीस्ट सी द शो? मतलब आई नो कि मतलब बहुत अजीब सा सवाल कर रही हूँ मैं शायद। हम्म, Understood. मतलब उनको यहाँ तक लाना ही बहुत हमारे लिए चैलेंज Yeah. होता है कि Hmm. वी वांट देम टू सी एंड गेट बेनिफिटेड, बट Hmm. आई डोंट नो व्हाट टू से। या सो चैलेंज में एक्चुअली पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरली ऐसा होता है कि किसी को पता चलता है ना कि ये मेरे लिए लॉस है। हम्म। अगर हम किसी भी तरह से ऐसी क्लासेस और ऐसी चीज जो उनको अट्रैक्ट करे, क्योंकि अगर उनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है वो तो हमें पता है, तो उनको भी पता है, राइट राइट। उनको भी पता है, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट। लेकिन वो जो है ना, पता है मतलब वो
अंदर से फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि एक अनकॉन्शियस स्टेट में है, मतलब ऐसी माइंड है कि चल रहा है, लेकिन अंदर से इतने अनकॉन्शियस है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। राइट दे राइट डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। सो इसमें अट्रैक्ट करने के लिए या उनको मदद करने के लिए, एक्चुअली वो ऐसे लोग हैं ना, वो चाहते होते हैं कि हमें कोई हेल्प करे। तो ऐसी इस प्रकार की थिंग्स ना, माइंड के रिलेटेड या हाउ टू एंजॉय द लाइफ, क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं। इन शॉर्ट, अगर उन्हें ये टॉपिक के नाम के द्वारा या तो डिस्क्रिप्शन के द्वारा उन्हें लगता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है। जैसे एक बच्चा है, मैं एक फाउंडेशन रन करती हूँ, सेक्शन को भी पता है। हाँ हाँ तो वेरी लाइव एग्जांपल जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब वो बच्चे के दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, हाँ हाँ एंड बहुत ही उसने इनफैक्ट ही नाउ तो ही सो अटैच टू मी, कॉल्स मी माँ एंड ऑल। मैंने उसको बहुत बार ट्राई किया कि मैं इसको इस टाइप की कुछ चीजें दिखाऊं कराऊं, बट उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि जैसे ही मैं किसी काउंसलर के पास जाता हूँ वो लोग फिर से मेरी स्टोरी पूछते हैं, और वो हम्म स्टोरी पूछने से मैं बहुत हेडेक होता है और मैं फिर से बहुत ही डिप्रेसिव फेज में चला जाता हूँ। तो वो उसको फेस ही नहीं करना चाहता है हाँ, कि क्योंकि ये 3 नंबर से उसको आता है तुरंत ही। या 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 सो इन तो सच केस उसको मैं ना वी, कैसे मोटिवेट करूँ, वही मुझे समझ maybe में we नहीं आ can रहा है। discuss offline. It will take some श्योर time for me. श्योर या वी विल, यस। Yeah, प्रीतिश जी, मैं थैंक आपको यू। सहयोगिता मैम का नंबर शेयर करूंगा। सहयोगिता sure. मैम, आप उत्तराखंड से हैं, देहरादून से, Okay, और डोट फाउंडेशन की आप सीईओ हैं। okay. जी, तो Good. मैं No, आपको we नंबर। will definitely work on that. But that is our goal, right? That we help them actually, and the solutions are actually simple. It just needs the conscious efforts. And see, the thing is, what I experienced earlier, what used to happen with me, we used to teach people ऐसा सोचो ऐसा नहीं सोचो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इम्प्रेशंस उन्हें परेशान कर रही। तो दैट्स व्हाट, उन्हें यस, कुछ ऐसा सिखाना पड़ता है कि वो इम्प्रेशंस ही बाईपास हो जाए। दैट्स व्हाट उसके दिमाग में जो इंप्रेशंस बैठे हैं ना, वो उससे निकल ही नहीं पा रहा है। निकल, क्योंकि बिल्कुल, इम्प्रेशन तो डिलीट नहीं होगी, वो तो एक बार गई माना गई। दैट्स व्हाट, वो रिप्लेस तो करना ही नहीं चाह रहा है। सॉरी, हाँ हाँ, या सो फिर विल डिस्कस ओवर द फोन। श्योर 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 सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।